السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ مرکزی حکومت نے آج رات 1.5 پیٹرول پر ایکسائز ڈیوٹی میں 10 روپے فی لیٹر کا بھاری اضافہ کر دیا ہے، جبکہ ڈیزل پر ایکسائز ڈیوٹی 13 روپے فی لیٹر بڑھا دی گئی ہے۔ اس اضافے کے نتیجے میں عالمی سطح پر خام تیل کی قیمتوں میں آنے والی بھاری گراوٹ کا صارفین کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ گزشتہ ہفتے خام تیل کی قیمتیں عالمی منڈی میں $18 فی بیرل ہو گئی تھی، جو 1999 کے بعد کی سب سے کم قیمتیں تھیں۔ کہا گیا ہے کہ مولک وبا کی وجہ سے پیٹرول اور ڈیزل کی طلب میں کمی کی وجہ سے قیمتوں میں گراوٹ آئی ہے، کیونکہ تیل کے ذخائر میں ذخیرہ زیادہ ہو گیا ہے۔ مرکزی حکومت کی جانب سے ایکسائز ڈیوٹی بڑھانے کے بعد صارفین کو جو راحت ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملے گی۔ صارفین کے لیے پیٹرول مہنگا ہی رہے گا۔ ایئر انڈیا 7 مئی سے ایک ہفتے کے دوران 64 طیارے چلائے گا اور خلیج کے علاوہ امریکہ، برطانیہ، ملیشیا اور دیگر ممالک میں پھنسے ہوئے ہندوستانیوں کو واپس لائے گا، جنہوں نے ملک واپس ہونے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ بحریہ کی جانب سے بھی 2 جہازوں کو متعین کیا گیا ہے۔ ون ڈے بھارت مشن کے نام پر بیرون ممالک میں پھنسے ہوئے ہندوستانیوں کو واپس لانے کے لیے شروع کی گئی یہ مہم 13 مئی تک جاری رہے گی اور اس دوران 12 ممالک سے 15,000 ہندوستانیوں کا تخلیہ کیا جائے گا۔ شہری ہوابازی کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے بتایا کہ ان ہندوستانیوں کو فضائی کرایہ برداشت کرنا ہوگا۔ لندن سے دہلی آنے والے مسافر کو 50,000 روپے اور ڈھاکہ سے دہلی آنے والے مسافر کو 12,000 روپے کرایہ ادا کرنا ہوگا۔ بحریہ کی جانب سے مالدیپ سے ہندوستانیوں کو لانے کے لیے آپریشن سمندر سیتو کے نام سے مہم شروع کی گئی ہے۔ 8 مئی سے 2 جہازوں INS جلا شیوا اور INS مگر کے ذریعے 1,000 لوگوں کو ہندوستان لایا جائے گا۔ ایئر انڈیا کا پہلا طیارہ UAE میں ابوظہبی سے 200 مسافروں کو لے کر کیرالہ کے کوچی پہنچے گا۔ 7 مئی کو مہم کے پہلے دن تقریباً 10 طیاروں کے ذریعے مختلف مقامات سے ہندوستانیوں کو لایا جائے گا۔ ہندوستان میں جب کورونا وائرس کے 400 مریض بھی نہیں تھے تب لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا تھا، اور آج 40,000 پار کر چکے ہیں تو لاک ڈاؤن کھول دیا گیا ہے۔ یہ ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کے وکاس کی بات ہے۔ ہندوستان میں کورونا وائرس کے متاثرین کی تعداد میں آج اچانک اضافہ ہوا۔ ایک ہی دن میں 3,900 متاثرین سامنے آئے ہیں۔ آنا ہی تھا، کیونکہ لاک ڈاؤن کے نام پر شراب کی دکانیں جو کھول دیا ہے، ہر جگہ افراتفری کا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ لاک ڈاؤن کی تو دھجیاں اڑائی جا رہی ہے۔ وزارت صحت کے جوائنٹ سیکرٹری لو اگروال نے روزانہ کی پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ ملک میں 24 گھنٹوں کے دوران پہلی مرتبہ اتنی بڑی تعداد میں مریضوں کا پتہ چلا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ریاستوں کو اس سلسلے میں خصوصی ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ٹیسٹ اور مریضوں کی دیکھ بھال کے تعلق سے مرکز کی ہدایتوں پر سختی سے عمل کریں۔ ہندواڑہ کشمیر میں عسکریت پسندوں کے ساتھ ایک مقابلے کے دوران ہلاک ہونے والے 5 سیکورٹی فورسز کے جوانوں کا بدلہ لینے کے لیے بغیر کوئی شور و غل مچائے سرجیکل اسٹرائک کیے جانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے شیو سینا نے الزام لگایا کہ کووڈ-19 کے خلاف جاری جدوجہد میں مرکزی حکومت کشمیر جنگ کے معاملے کو بھول گئی ہے۔ شیو سینا کے ترجمان اخبار سامنا میں آج شائع ایک اداریے میں شیو سینا نے کہا کہ جس طرح فوج کی جانب سے ڈاکٹروں اور طبی عملے پر پھول برسائے گئے، اسی طرح ان شہداء کے اہل خاندان پر بھی پھول نچھاور کرنے چاہیے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ اور نفرت پیدا کرنے کی ملک میں جاری مذموم کوششوں پر بلا راست تنقید کرتے ہوئے اخبار نے کہا کہ اس معاملے میں ملک میں ہندو مسلم کے نام پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ سامنا کا کہنا ہے کہ ملک کے لیے زبردست قربانی دینے والے ان شہید جوانوں میں ایک مسلمان جوان بھی شامل ہے، لہٰذا جو لوگ ہندو مسلم سیاست کر رہے ہیں ان اس بات کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ واضح ہے کہ شمالی کشمیر کے علاقے ہندواڑہ میں 2 روز قبل عسکریت پسندوں کے ساتھ ایک مقابلے میں ایک فوجی کرنل اور ایک میجر سمیت 5 اہلکار ہلاک ہو گئے تھے۔ اتر پردیش کے چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ نے جموں کشمیر کے ہندواڑہ میں دہشت گردوں کے ساتھ تصادم میں CRPF کے شہید جوانوں اشونی کمار یادو، سنتوش کمار اور چندر شیکھر کی بہادری کو سلام کرتے ہوئے انہیں جذباتی خراج عقیدت پیش کیا۔ یوگی نے کہا کہ ملک کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کو نچھاور کرنے والے ان شہیدوں کے اعلیٰ قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ یوگی نے غازی پور کے رہنے والے CRPF جوان اشونی کمار یادو کی شہادت کو سلام کرتے ہوئے ان کے اہل خانہ کے تئیں ہمدردی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ غم کی اس گھڑی میں ریاستی حکومت شہیدوں کے خاندان کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہیدوں کے خاندان کی ہر ممکن مدد کی جائے گی۔ سخت قانون تحفظ عامہ PSA کے تحت سابق چیف منسٹر جموں کشمیر محبوبہ مفتی کی تحویل میں آج 3 ماہ کی توسیع کر دی گئی ہے۔ ضلع مجسٹریٹ سری نگر میں ایک مختصر حکم میں محبوبہ مفتی کی تحویل کو جاری رکھنے کی ہدایت دی گئی۔ PSA کے تحت محبوبہ مفتی کی جاریہ تحویل کے ختم ہونے سے صرف چند گھنٹے قبل ہی یہ حکم جاری کیا گیا۔ TMC کی سینئر لیڈر اور رکن پارلیمان محبوبہ مترا نے حکومت کے اس دعوے کی قلعی کھول دی ہے کہ مسافروں سے کرایہ وصول کرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے ریلوے بورڈ کے پرنسپل ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے دستخط والا وہ لیٹر ٹویٹ کیا ہے جس میں 11ویں نقطے کے
सी के ज़ील में लिखा है कि मुकामी रियासती हुकूमत टिकट मुसाफिरों के हवाले करेगी और किराया वसूल करके इसे रेलवे को सौंप देगी। उन्होंने कहा कि मरकज़ असल में उसूली मरकज़ बन गया है। चंद सहाफ़ियों ने भी ये मकतूब शेयर किया है। मौलिक वबा के पेश नज़र मुल्क भर में जारी लॉकडाउन के तीसरे मरहले में हुकूमत ने सोशल डिस्टेंसिंग और कुछ दूसरी शराइत के साथ शराब की दुकानें खोलने की हिदायत दी थी, जिसे हुकूमत की जानिब से सुबह 10 बजे शाम 6 बजे तक ही दुकान खोलने की हिदायत मिलने के बाद 42 रोज़ के बाद लॉकडाउन 3 के पहले ही रोज़ शराब की दुकानों पर सुबह से ही भीड़ जमा हो गई थी। देर रात में महकमा आबकारी की जानिब से मिली इत्तला के मुताबिक लॉकडाउन के बाद उत्तर प्रदेश में 300 करोड़ रुपए की शराब फरोख्त की गई है, जिसमें सर फहरिस्त राजधानी जहां पर तकरीबन 6 करोड़ रुपए की शराब फरोख्त हुई है, कानपुर में 5 करोड़, गाजियाबाद में 5 करोड़ के आसपास शराब फरोख्त होने की बात कही जा रही है। तीसरे दौर का लॉकडाउन जारी है, 17 मई तक यह जारी रहेगा, लेकिन इस लॉकडाउन पर कुछ सवाल भी उठाए जा रहे हैं। अपोजिशन कांग्रेस शुरू से लॉकडाउन को गैर मुनज़्ज़म करार दे रही है और अब इसकी जानिब से कहा गया है कि लॉकडाउन के लिए सूबाई हुकूमतों को खुद मुख्तार होना चाहिए। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने नोबेल इनाम याफ्ता प्रोफेसर अभिजीत बनर्जी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉकडाउन, कोरोना और मुल्क की मईशत पर खुसूसी बातचीत की। राहुल गांधी ने बातचीत के दौरान कहा कि मरकजियत और लामरकजियत के दरमियान एक तवाज़ुन है। हर एक सूबे की अपनी बारीकियां हैं। केरला कुछ अलग कर रहा है, उत्तर प्रदेश कुछ अलग कर रहा है, लेकिन इसमें मरकजी हुकूमत का भी अहम किरदार है। इन दो नज़रियात के दरमियान कशीदगी को देखा जा सकता है। इस पर प्रोफेसर बनर्जी ने कहा, आप सही है। वाज़े तौर पर मुहाजिरीन की नकल मकानी को सूबाई हुकूमत के जरिए ख्वाबों में नहीं किया जा सकता। इसको दो तरफा बातचीत से संभालना अजीब है। ये एक मसला है। इसमें आप लामरकजियत नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आप हकीकत में मालूमात जमा करना चाहते हैं। अगर लोग कोरोना पॉजिटिव है तो आप नहीं चाहते कि वो पूरे मुल्क में घूमें। मुझे लगता है कि हुकूमत को ऐसे लोगों का टेस्ट करना चाहिए जहां इन्हें ट्रेन या सफ़र की इजाज़त है। ये एक मरकजी सवाल है और इसको सिर्फ मरकज हुई हुकूमत ही सुलझा सकती है। वबाई मर्ज कोरोना के सबब पूरे मुल्क में जारी लॉकडाउन में इंटरेस्ट की रकम से मुस्लिम लोग गरीबों की मदद कर सकते हैं। ये जायज़ है, लेकिन इंटरेस्ट की रकम को मस्जिद बनाने या फिर खुद के इस्तेमाल में नहीं ले सकते। ये अहम फतवा देवबंद दारुल ने कर्नाटक के रहने वाले मोहम्मद उसामा के जरिए पूछे गए सवाल के जवाब में दिया। मुफ्तियान इकराम अब तक बैंकों में जमा रकम पर मिलने वाले इंटरेस्ट को हराम और नाजायज़ करार देते रहे हैं, लेकिन कोरोना के बढ़ते असरात को रोकने के मद्देनज़र पूरे मुल्क में जारी लॉकडाउन में अब गरीबों की मदद की जा सकती है। तफसील के मुताबिक कर्नाटक के रहने वाले मोहम्मद उसामा ने दारुल उलूम देवबंद से सवाल किया था कि हमारी मस्जिद के बैंक अकाउंट में मस्जिद की खतीर रकम इंटरेस्ट की जमा है। मौजूदा हालात में जबकि रोज़ खाने कमाने वाला गरीब तबका इंतहाई परेशान है, इसके पास खाने पीने की अशिया तक नहीं है। ऐसी सूरत में अराकीन मस्जिद इंटरेस्ट की यह रकम ज़रूरतमंद अहबाब में तकसीम करना चाहते हैं, तो क्या वो इस तरह कर सकते हैं? महाराष्ट्र में मौलिक वबा के बढ़ते मामलात के पेश नज़र वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने आज इस बात का इशारा दिया कि महाराष्ट्र में नाफिज लॉकडाउन में 31 मई तक तोसी कर दी जाएगी। साथ ही उन्होंने आज रियासत के तमाम शहरों के पुलिस कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स और मुंबई समेत दीगर तमाम शहरों के म्युनिसिपल कमिश्नरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात करते हुए कहा कि लॉकडाउन को 100% कामयाब बनाने के लिए चाहे जितनी सख्ती बरतनी पड़े करो। अगर कोई बात से नहीं माना तो उसे दफ़ा 144 के तहत सीधे हवालात में बंद कर दो, क्योंकि हम सबको मिलकर 31 मई तक महाराष्ट्र को कोरोना वायरस से पाक करके अपनी रियासत को ग्रीन जोन में लाना है। कोरोना बहरान की वजह से मुल्क गिर लॉकडाउन के सबब पूरे मुल्क में फंसे लाखों मुहाजिर मजदूरों की घर वापसी पर रेलवे महकमे के जरिए इनसे सिर्फ किराया ही नहीं, इजाफी टैक्स भी वसूलने से काफ़ी हंगामा मचा है। हद तो यह है कि इसके अलावा जख्म पर नमक रगड़ने वाली खबर यह है कि मजदूरों से किराया वसूली पर मचे हंगामे के दरमियान ही रेल वजारत ने अपनी तरफ से पीएम केयर फंड में 150 करोड़ रुपया अतिया दिया है। यहीं से सवाल खड़ा हो गया कि रेलवे पीएम केयर फंड में तो अतिया दे सकता है, लेकिन मजदूरों का किराया कम या माफ नहीं कर सकता। इस हालत में पीएम केयर फंड पर भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि कोरोना बहरान के दौरान लोगों की राहत के लिए बनाए गए पीएम केयर फंड में हजारों करोड़ रुपए जमा हैं और लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। इसके बावजूद आखिर क्यों बहरान के इस वक्त में गरीब बेबस मजदूरों से जबरन किराया वसूल किया जा रहा है? क्यों रेलवे के पास पीएम केयर्स फंड में देने के लिए पैसे हैं लेकिन मजदूरों का किराया माफ़ करने के लिए नहीं है? आखिर पीएम केयर फंड किसके लिए और इसमें कितने रुपए जमा हो चुके हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका जवाब किसी के पास नहीं है। यहाँ तक कि पीएमओ यानी वज़ीर-ए-आज़म दफ्तर को भी नहीं मालूम है कि अब तक इस फंड में कितना पैसा जमा हुआ है। दी टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक पीएमओ को नहीं मालूम है कि पीएम केयर्स फंड में अब तक कितनी रकम जमा हो चुकी है या इस फंड से किसी को कोई राहत पहुंचाई गई है या नहीं। खबरों के मुताबिक इस बारे में पूछे जाने पर पीएमओ से जुड़े एक अफसर का जवाब था, कोई जानकारी नहीं है। हत्ता कि पीएम केयर्स फंड की वेबसाइट पर भी इस सिलसिले में कोई जानकारी नहीं है। गरीब तक तो ये पैसा नहीं पहुंचा है, ना गरीब की इससे कोई मदद की गई है।
बल्कि बहरान की इस घड़ी में पेट्रोल और डीजल पर कीमतें बढ़ाई जा रही है, तो शराब पर भी कीमतें बढ़ा दी गई है। लफ्ज़े हर जगह से कीमतें बढ़ाकर आम लोगों पर बोझ डाला जा रहा है, लेकिन अपने खजाने पर बोझ पड़ने नहीं दिया जा रहा है। कोरोना वायरस की वबा अब तक दुनिया भर में 2.5 लाख से ज्यादा जानों को निगल चुकी है। इनमें 85% ज्यादा अमवात यूरोप और अमेरिका में हुई है। तफसीलात के मुताबिक अब तक दुनिया भर में कोरोना के 35,70,000 तौसीक शुदा केसेस सामने आ चुके हैं। इनमें 2,50,700 अफराद मौत की नींद सो चुके हैं। कोरोना के सबब मरने वालों की तादाद के लिहाज से दुनिया भर में सर-ए-फहरिस्त अमेरिका है। आलमी इदारा सेहत WHO ने कहा है कि अमेरिका ने अब तक कोरोना वायरस के चीन के शहर वुहान की लेबोरेटरी से फैलने के सबूत फराहम नहीं किए, इसलिए सबूत की अदम फराहमी तक यह एक दावा ही है। WHO के हंगामी हालात के डायरेक्टर माइकल रयान ने कल वर्चुअल ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अमेरिकी हुकूमत ने ऐसे कोई शवाहिद नहीं दिए जिससे इस दावे को तक़वियत मिल सके कि कोरोना वायरस चीन की लेबोरेटरी से निकला था। हमारे नुक्ते नज़र से यह अब तक कयास आ रही है। हुकूमत तेलंगाना ने रियासत भर में 29 मई तक लॉकडाउन में तोसी का ऐलान किया है। 6 रेड जोन अजला में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जाएगा, जबकि 28 ऑरेंज और ग्रीन जोन के अजला में मरकजी हुकूमत के ऐलान के मुताबिक रियायतें देने का फैसला किया गया है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने तकरीबन 6 घंटे तवील काबीनी इजलास के बाद मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए काबीनी फैसलों से वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के 6 रेड जोन अजला हैदराबाद, विकाराबाद, रंगारेड्डी, मेडचल, सूर्यापेट, वरंगल में कोई रियायतें नहीं दी जाएगी। चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया कि सारी रियासत में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक रात का कर्फ्यू जारी रहेगा और ऑरेंज और ग्रीन जोन में तिजारती, तामीराती और ज़रई सरगर्मियों के लिए सुबह 10 से शाम 6 बजे तक इजाज़त रहेगी। चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया कि जारिया माह के अख्ताम तक SSC के बाकी 8 पर्चेजात के इम्तहानात मुनक़िद किए जाएंगे। इस सिलसिले में तेलंगाना हाईकोर्ट से इजाज़त हासिल की जाएगी। इंटरमीडिएट इम्तहानात के पर्चेजात की जाँच का आज से आगाज़ होगा। उन्होंने कहा कि तालीमी साल के आगाज़ के बारे में बहुत जल्द फैसला किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि आज तेलंगाना में 43 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया और 11 पॉजिटिव केसेस मंजर-ए-आम पर आए और जुमला दवाखानों में 439 मरीज ज़ेर इलाज है। उन्होंने बताया कि रियासत के 9 अजला ग्रीन और 18 ऑरेंज जोन में है और आइंदा 11 दिनों में 18 अजला भी ग्रीन जोन में शामिल हो जाएंगे। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों से अपील की है कि इस साल ईद उल फितर सादगी के साथ मनाई जाए। ईद के दिन मर्द हों या औरत या बच्चे पुराने ढले हुए कपड़े पहनने पर इक्तफा करें। नए कपड़े और नए जूते चप्पल खरीदने और मार्केट में जाने से गुरेज करें। आपके दुकानों में जाने से समाजी दूरी के उसूल टूट जाएंगे, इससे बीमारी के फैलने का अंदेशा है। नए कपड़ों के मुकाबले अपनी और अपने मुतालिकीन की सेहत को बचाना ज्यादा अहम है। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत के तमाम सरकारी, इमदादी और खानगी गैर इमदादी स्कूलों में पहली ता 9वीं जमात के तमाम तलबा को अगली क्लासेस में प्रमोट करने के अहकाम जारी किए हैं। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी महकमा तालीम चित्रा रामचंद्रन ने आज GO RT 54 जारी किया, जिसके तहत तालीमी साल 2019-20 में यकूम ता 9वीं जमात के तमाम तलबा को अगली क्लासेस में प्रमोट करने का फैसला किया गया। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद पार्लिमानी हल्के के अलावा नामपल्ली और राजेंद्र नगर हल्कों में सरबराही आप के बहरान को खत्म करने वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव से अपील की। असदुद्दीन ओवैसी ने आज ट्विटर के जरिए वजीर बल्दी नज़्म व नस्क के अलावा प्रिंसिपल सेक्रेटरी बल्दी नज़्म व नस्क अरविंद कुमार और वाटर वर्क्स के नायब सदर नशीन व मैनेजिंग डायरेक्टर दाना किशोर को तवज्जो दिलाई कि हैदराबाद पार्लिमानी हल्के और हल्का असम्बली नामपल्ली के अलावा हल्का असम्बली राजेंद्र नगर के तहत वाटर वर्क्स के 1, 2 और 3 डिवीजन्स में पानी की सरबराही को बाकायदा और बेहतर बनाने की ज़रूरत है। जिन इलाकों का उन्होंने तस्करा किया वहाँ बिला वक्फा मुनासिब मकदार में पानी की सरबराही की जानी चाहिए। सदर मजलिस ने कहा कि मौसम गर्मा के महीनों में पानी की कमी के सबब अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए मजदूर जिनका ताल्लुक बिहार से है, आज बजरिए ट्रेन इनकी आबाई रियासत भेज दिया गया। ये मजदूर जो बिहार के खगाड़िया इलाके से ताल्लुक रखते हैं, तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात पर फंसे हुए थे। मेडचल जिले के गटकेसर से ये मजदूर बजरिए ट्रेन रवाना हुए। इनकी तादाद 1200 है, जिनको ओहदेदारों ने गटकेसर रेलवे स्टेशन से बिहार के लिए रवाना किया। डॉक्टर्स की टीम की जानिब से इन तमाम मजदूरों की क़ब्ल अज़ तिब्बी जाँच की गई, जिसके बाद इनको बिहार जाने की इजाज़त दी गई।